See, NCRT, the very first exercise, question number 1. The question is zero, ध्यान से देखिएगा, is zero a rational number? क्या जीरो एक रेशनल नंबर है? Can you write it in the form of p by q where p and q are integers where q is not equal to 0? At first you should know what is rational number. आप तो पहले से यहीं पर कह दिया है कि क्या रेशनल नंबर होता है. रेशनल नंबर वो है जिसको आप p by q के रूप में लिख लें और p q दोनों क्या हो, ये दोनों इंटीजर्स हो जाएं और q की वैल्यू जीरो नहीं है, यही रेशनल नंबर होता है. So what actually we should have? If you are having 0, so can you write 0 by 1? What is the value of p here? P is equal to 0 and q is equal to 1, and the denominator is not equal to 0. Q does not equal to 0 means q is not equal to 0 means what? 1 is not equal to 0. So it means that 0 can be written as 0 by 1. So we can say yes, it is a rational number. This is first one is clear. And it can be written in the form of p by q. We have already written. अगर कोई पूछता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p, तो आप बोलोगे भैया देखो p इज इक्वल टू 0 है एंड q इज इक्वल टू 1 है. यानी अगर आपसे क्वेश्चन है कि 0 क्या रेशनल नंबर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है. क्या लिख सकते हैं? 0 बाई 1 कर सकते हैं. डिनोमिनेटर का मान 0 नहीं है और 0 और 1 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर ये दोनों क्या है? इंटीजर्स हैं. ध्यान से देखो बच्चों, along with this any number whether it is positive or negative, if you are having, we have already seen in the first video, if you write 2 by 3 we don't mind, it's a rational number because 2 is integer, 3 is integer. If you have minus 3 by 17, this is a rational number because minus 3 is integer, 17 is integer. If you write minus 8, that is also a rational number because the minus 8 could be written as minus 8 by 1. Similarly, if you have 13, you can have 13 by 1. Means all the integers from 0 to 1 and minus 1 minus 1, all the integers could be written in the form of p by q. सभी इंटीजर्स को आप p by q के रूप में लिख सकते हैं. कुछ करना नहीं है, डिनोमिनेटर में 1 लिख देना है, 1 इंटीजर होता है और ऊपर वाला तो हमने इंटीजर बोला ही हुआ. So this way you have seen the first question. 0 is a rational number and it can be written in the form of p by q where p is equal to 0 and q is equal to 1. Now the second question is find 6 rational numbers between 3 and 4. One concept we have already made very clear, that if you have two numbers, then infinite number of rational numbers can be inserted between the two numbers. For example, if you are having 3 and 4, so you can have 3 plus 4 by 2. So this is also what? A rational number. Then again you can have 3 plus 7 by 2 divided by 2. Again one more you have. Here you can have 7 by 2 plus 4 by 2. This is also included. Like that you can find, that is, if you are having 3, 4, the first one is what? 7 by 2. Then in between these two, you can have one here. Or in between these two, you can have here. Again, this and this, you can find the sum of the two numbers divided by 2. आप दोनों का एवरेज निकाल कर जाओगे. 3 plus 4 by 2, 3 plus this by this plus this by 2. ऐसा है. ये एक जो कॉमन तरीका है जो हम यूज करते हैं. लेकिन मैं आपको एक बड़ा आसान तरीका बताता हूं, आपको बहुत अच्छा लगेगा. दिस इज वेरी इजी एंड इंपॉर्टेंट वे ऑफ डूइंग द क्वेश्चन. जैसे आप कहते हो 3 और 4 के बीच में, तो अगर आप 3 लिखते हो, ध्यान से देखिएगा, आपको कितना चाहिए? आपको चाहिए 6. 3 और 4 के बीच में आपको कितने नंबर चाहिए? कितने रेशनल नंबर चाहिए? 6 चाहिए. तो अगर 6 चाहिए तो पहले आप क्या करिए, 3 को लिख दीजिए 3 मल्टीप्लाइड बाय कितना चाहिए? 6. तो आप लिखिए 6 प्लस 1 कितना होता है? 7. और यहां 7, कोई अंतर तो नहीं पड़ा. द सेम नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 7 डिवाइड बाय 7. तो ये कितना हो गया बच्चों? दिस इज 21 बाय 7. 21 by 7 is equal to 3. First. Second, if you are having 4, so what can you write? 4 divided by the same thing, 6 plus 1, and here it is 7. So it is 21 by 7. What are the two things you have seen? You have seen 21 by 7 and 28 by 7. 3 को आपने 21 by 7 कर दिया, 4 को 28 by 7 कर दिया. अब अगर आपसे कहते हैं, याद रखिएगा, आपको इन दोनों के बीच का रेशनल नंबर, तो आप लिखोगे रिक्वायर्ड रेशनल नंबर्स आर, रिक्वायर्ड रेशनल नंबर्स आर, कुछ नहीं करना है, फ्रॉम बिटवीन 21 एंड 28. पहला क्या होगा? 22 by 7, then 23 by 7, then 24 by 7, then 25 by 7, then 26 by 7, then 7 by 7.
6 हो गया। देखो क्या करना था, जो नंबर दिया हुआ है उसको आप ऐसे फॉर्मेट में ला सकते हो। 6 चाहिए तो 6 प्लस 1। एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मान लो आपसे कहता भाई हमको 6 नहीं चाहिए, हमको 8 रेशनल नंबर, क्योंकि वो दोनों का एवरेज निकालना इज वेरी डिफिकल्ट। डिफिकल्ट आपको कॉम्प्लिकेट होता चला जाएगा, ये बहुत आसान है। मान लीजिए आपको 8 चाहिए, यू वांट टू फाइंड 8। अब ध्यान से देखिएगा, इफ यू वांट टू फाइंड 8, तो इस 3 को आप क्या लिख सकते हो, 3 को लिख सकते हो 3 इंटू हाउ मच, 8 प्लस 1 एंड हियर इट इज 9। जो नीचे वाला है वही ऊपर से कर दिया, तो कितना हो गया, दिस इज 27/9। इज इट क्लियर नाउ? आपको कितना चाहिए, 8 चाहिए। सिमिलरली दिस 4 को लिख सकते हो 4 इंटू 9 डिवाइड बाई 9, द सेम। तो ये कितना हो गया बच्चों, ये हो गया 36/9। तो क्या हुआ, 26/9 एंड 36/9 क्या क्या रेशनल नंबर होगा बताओ? रेशनल नंबर होगा 28/9 फर्स्ट, 29/9, 30/9, 31/9, 32/9, 33/9, 34/9, 35/9। तो 5 ये हो गया, 3 ये हो गया, 8 हो गया। मतलब आपको अब तक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि कभी भी अगर आपको दो नंबर्स के बीच में रेशनल नंबर निकालना है, तो ये एक बहुत ही क्या अमोघ अस्त्र है। इट्स वेरी सिंपल एंड वेरी यूजफुल। बहुत साधारण भी है और बहुत अच्छा भी है। नाउ यू हैव अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। यू हैव टू फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 and 4/5. These numbers are not integers, they are already in the rational number form, or they are the rational numbers, but the method is same. One, you can have 3/5 plus 4/5 divided by 2, the number you get again 3/5, that number plus divide by 2, and so on and so forth, which is a very lengthy process. But if you are going to have 3/5, how many rational numbers you want? You want 5. So what should you do? You should multiply the numerator and denominator by 6. So this 3/5 could be written as 3/5 into 6, here into 6, that is equal to 18 divided by 30. Means 3/5 could be written as how much? 18/30. What is the second number? The second number is 4/5. What should you have? 4 into 6, 5 into 6, that is equal to 24. Here it is 30. Meaning 3/5 could be written as 18/30 and 4/5 could be written as 24/30. ये वही नंबर है, 3/5 ही है, 4/5 ही है। लेकिन अब आपसे पूछते हैं कि भाई आप बताओ, तो ये तो बहुत आसान हो गया। What are the required rational numbers? What are the required rational numbers? 18 और 24, डिनोमिनेटर तो सेम है। तो पहला क्या होगा, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30, 1 2 3 4 5 हो गया। कुछ नहीं करना था, हमने 3/5 को 18/30 कर दिया। 18/30 पाने का सबसे आसान तरीका है कि जितना आपसे पूछता है रेशनल नंबर, +1 करके नीचे पर मल्टीप्लाई कर दिए, बस। सिमिलरली जो दूसरा नंबर है 4/5, 5 पूछ रहा है तो 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। आपने कर दिया मल्टीप्लाई, ये दोनों नंबर आए, तो इनके बीच में डायरेक्ट हमारे पास रेशनल नंबर क्या हो गए, जो नंबर होता है यहाँ से 18 और 24 के बीच में 5 आ जाएगा, आप उसको कर लें। आपके पास एक और डाउट हो सकता है कि सर कोई ज़रूरी है कि हम उसे उसी से करें? बिल्कुल नहीं। अगर आप यहाँ पर 6 से किए हैं, आप 7 से कर लीजिए, 8 से कर लीजिए, 10 से कर लीजिए, लेकिन 6 से कम से मत करिए। वो मिनिमम नंबर है। अगर 7 से 8 से कर लेते हैं तो और आपके पास एक्सपेंशन बढ़ जाएगा। आप चाहें तो उसमें और ले सकते हैं। कुछ दूर तक जाएँगे, जैसे आपने इसमें 7 से कर दिया, तो यहाँ पर क्या होगा? ये 21/35 होगा और यहाँ पर कितना होगा? 21/35 होगा। तो अब 21 से लेके 28 तक, 22, 23, 24, 25, 26, 27, मतलब क्या हो गया? आपको 5 चाहिए था, यहाँ 6 मिल गया। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? तो ये कोई मैंने कसम नहीं खा के रखे हैं कि जब भी मल्टीप्लाई करेंगे तो हम जितना पूछा है उससे +1 ही करेंगे। वो कम से कम है, उससे बड़ा होगा तो चलेगा। आपको आपके पास ऑप्शन रहेगा। इज इट क्लियर? ग्रेट। नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज अ ट्रू फॉल्स क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज state whether the following statements are true or false, and you have to give the reason for this. What is the first question? The first question is every natural number, याद रखो, is a whole number. हर नेचुरल नंबर एक होल नंबर होता है। पहले आप ये समझो कि नेचुरल नंबर क्या होता है। नेचुरल नंबर शुरू होता है 1 2 3 4 5 6 7, नेचुरल नंबर होता है। और होल नंबर क्या होता है, 0 1 2 3 4 5, ये होता है होल नंबर। तो अब बहुत सीधी सी बात है कि क्या एवरी नेचुरल नंबर जो होल नंबर है, तो देखो ना 1 2 3 4 5 है, यहाँ भी 1 2 3 4, बल्कि इसमें एक एक्स्ट्रा भी है।
व्हाट इज दैट एक्स्ट्रा? जीरो इज एन एक्स्ट्रा एलिमेंट। इज क्लियर? तो हमने क्या कह दिया? हमने ये कह दिया कि एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। हमने कहा भाई ये तो ट्रू है। रीजन में क्या लिखोगे? होल नंबर में सभी नेचुरल नंबर तो होते ही हैं, साथ साथ जीरो भी होता है। मींस होल नंबर इज द सेट ऑफ नंबर कंसिस्टिंग ऑफ व्हाट? ऑल द नेचुरल नंबर एंड जीरो। सो हर नेचुरल नंबर क्या हो गया? एक होल नंबर हो गया। यहां तक बात क्लियर हो गई। अब जरा उल्टा देखिए, ये क्वेश्चन दिया नहीं है, आपसे ये पूछा जाए कि इज एवरी होल नंबर अ नेचुरल नंबर? सब होल नंबर एक नेचुरल नंबर है क्या? तो हम बोलेंगे नो। क्यों नहीं होगा? आप खुद देख लो। जीरो जो है वो होल नंबर है लेकिन नेचुरल नंबर नहीं है। तो हमने क्या बोला? एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर बट नॉट द कन्वर्स। मीनिंग हर नेचुरल नंबर होल नंबर तो है लेकिन हर होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं है। ये क्लियर हो गया? हालांकि आपसे क्वेश्चन सिर्फ यही पूछा गया था, उसका आंसर आपने कह दिया कि साहब ऐसा नहीं है। दूसरा देखिए, एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। ध्यान से देखिएगा, इंटीजर क्या होता है? ये 0 1 2 3 4 5 तो होता ही है, लेकिन फिर हम क्या कहते हैं? -2 -3 ये भी होता है। तो ये वाला इंटीजर है। क्वेश्चन क्या है? एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। हर इंटीजर एक होल नंबर है। भाई देखो, यहां से तो होल नंबर है लेकिन नन ऑफ द नेगेटिव नंबर्स आर होल नंबर। -1 -2 तो आप लिखोगे कि साहब ये तो हो गया फॉल्स। क्यों फॉल्स हो गया? क्योंकि एवरी इंटीजर इज नॉट ए होल नंबर। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी भी नंबर को लो, -1 -2 -3 -5 -6, या यूं कह दो कि नेगेटिव इंटीजर्स आर नॉट होल नंबर्स। जो नेगेटिव इंटीजर्स हैं वो होल नंबर नहीं है। इसलिए ये जो स्टेटमेंट है कि एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर इज नॉट करेक्ट और नॉट ट्रू। सो दिस इज फॉल्स हो गया। क्लियर? क्या कारण हुआ? हमने कहा -2 इज नॉट ए होल नंबर, -3 इज नॉट ए होल नंबर। आपके एनसीईआरटी में आंसर दिया है -2 इज नॉट, कुछ और -2 ही लिखे, आप -3 कर लीजिए, आप -5 लिख दीजिए, -7 लिख दीजिए, या आप ये लिख दीजिए कि नेगेटिव इंटीजर्स आर नॉट होल नंबर, वो भी चलेगा। सो रीजन कैन बी डिफरेंट देन व्हाट इज गिवन इन द बुक, दैट इज आंसर। अगला देखिए, एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। ध्यान से देखिएगा, रेशनल नंबर क्या होता है? द नंबर दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q। देखो, हम कहते हैं कि हर रेशनल नंबर एक होल नंबर होगा। जरा हम एक नंबर दे रहे हैं, हम कहते हैं 2/3। 2/3 क्या है? एक रेशनल नंबर है। -7/8 एक रेशनल नंबर है। 11/17 एक रेशनल नंबर है। ये सभी क्या है? ऐसे रेशनल नंबर हैं जो न तो नेचुरल नंबर है, न होल नंबर है, न इंटीजर्स है। तो आपसे पूछा गया है कि हर रेशनल नंबर एक होल नंबर होता है, तो आप बोल दोगे भैया इसका आंसर तो क्या हो गया? फॉल्स हो गया। और एग्जाम्पल देना तो कोई भी एग्जाम्पल दे लो, 2/3 4/5 6/। अब ऐसा मत देना कि साहब हमने 2 लिखा तो 2 क्या है? रेशनल नंबर भी है, क्योंकि 2 को आप क्या लिख सकते हो? 2/1 और होल नंबर भी नहीं। आपको ऐसे नंबर की तलाश करना है जो, भैया आप तो देखे होंगे ना, अगर आप एग्जाम में 5 सब्जेक्ट में 4 सब्जेक्ट में आपने बहुत अच्छा किया, एक सब्जेक्ट में गड़बड़ कर दिया तो सब लोग क्या बोलता है? इसमें गड़बड़ कर दिया। आपको क्या करना है? कोई भी ऐसा एक नंबर तलाश लेना है जो इसको सेटिस्फाई, क्योंकि अगर सेटिस्फाई होना है तो इट हैज टू सेटिस्फाई फॉर ऑल द नंबर्स। तो हमने क्या कह दिया कि 2/3 -7/8 11/17 3/5 -5/17 ये सभी क्या है? रेशनल नंबर हैं लेकिन होल नंबर नहीं है। ये प्रश्न ये पूछता है कि इन प्लेस ऑफ होल नंबर, कहता है इंटीजर्स हैं तो बोलते कि नहीं। अगर पूछता नेचुरल नंबर तो बोलेंगे नो। मतलब ये होल नंबर की जगह पर अगर नेचुरल नंबर भी होता तो भी बोलते फॉल्स, इंटीजर बोलता तो भी बोलते फॉल्स। सो दिस वे we have done the first exercise with all the other possibilities. So this is exercise 1.1, NCERT exercise 1.1 हो गया with extra input। अलग जो है हम लेवल 2 जब में जाएंगे तो हम अलग से क्वेश्चन करेंगे। आई होप यू मस्ट हैव, आपको जरूर आपको समझ में आया होगा। आप इसको अपने से भी देखिए, प्रैक्टिस करिए, एंड कोई भी कंफ्यूजन होने पर राइट इन द कमेंट बॉक्स, विल टेक अप दोज थिंग्स एंड विल, ठीक है, विश यू ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस।